હલો, બોલો સદગુરુદેવની, સર્વે સંતોની, ઉગારામ દાદાની જય. જોકે આપણે દરેક ધન્યવાદને પાત્ર છીએ, આશીર્વાદને પાત્ર છીએ. દાદા ઉગારામને છત્ર છાયા કાયમિકના માટે મેં સવારે કીધું છે અને રહેવાની છે. એની દયા કૃપાથી આપણી ત્યાં મહેમાન આવે અને જેને ઘેર સદગુરુના વાસા ઉજળા એના આંગણા. અને મેં અને મહેમાન, મેં અને મહેમાન. મેં એટલે અમારે દેશી ભાષામાં બાપુ બારીશ બોલતે, મેં અને મહેમાન. મહેમાન અને ઘણી વખત વરસાદ આવે ને એટલે લોકો આંફળા ફાફડા થઈ જાય, તરત જ આકા બીજું આડાવડા થઈ જાય ને કાં છાંયે જાય ને છત્રી ગોતે ને ફલાણું ગોતે. પણ આપણે દરેક ખેડૂત છીએ, વિચાર કરીએ ને કદાચ વરસાદ ન હોય તો, મેં ન વરસે તો કપડાં તો અડધી કલાકમાં સુકાઈ જાય ને, કદાચ ભીના થાય તો સુકાઈ જાય. પણ એટલા બધા આકુળ વ્યાકુળ થઈ જાય, પણ એને હકીકતમાં વરસાદની મેની એને ખબર નથી. જો ખબર હોય ને તો કદાચ પાકીટ, કદાચ ફોની નોટ પલરી હોય તો એ તો સુકાઈ જાય 5 મિનિટમાં. એટલે મેં અને મહેમાન. જો વરસાદ હોય, મેં હોય તો બધું ધાન્ય પાકે ને બધું થાય ને. જીવસૃષ્ટિ એની માથે ને પાણી માથે પવન કેરી પેદાશ બનાવી, જળમાંથી જુગતી રસાવી. એટલે કાયમિકના માટે સદગુરુદેવ હાજરા હાજર છે. એટલે મેં અને મહેમાન એ ભાગ્ય હોય એટલે આપણી ભાગ્ય દાદાની દયા કૃપા સંતોન મહાપુરુષોની. હવે એ અખાડામાં આપણે જુનાગઢ હતા, જુનાગઢથી પાછા દિલ્હી આવ્યા, દિલ્હીથી પાછું અર્જન્ટ કામ માટે પાછા જુનાગઢ ગયા. અને જુનાગઢથી તમારી જાણ ખાતર બાપુ આવે એમ નહોતા, છતાંય આપણી હાજરી માટે અત્યારે પાછા રાજકોટથી બાપુ હાજરી આપ્યા. અને સંપૂર્ણાનંદ બાપુ ચંદીગઢ, બહુ મોટું નામ છે બાપુનું. જેટલી ઉપમા આપીએ, જેટલી આપણે આપીએ એટલી ઓછી છે. એટલે ધન્યવાદ છે. એમનું પણ સ્વાગત, આપણે સન્માન પણ કરવું જોઈએ. તદુપરાંત સાથે પૂજ્ય સતપાલજી મહારાજ રાધાકૃષ્ણ ધામ હરિદ્વારથી પણ આવેલા છે, એમને પણ આવકારીએ છીએ. તદુપરાંત શિવાનંદજી પ્રયાગરાજજી બાપુ આવેલા છે, એમને પણ. તદુપરાંત જેના પટાંગણામાં બેઠા સ્વામિનારાયણ, અહીંના મહંત, અહીંના જે તે કયો ઉપરી મહંત કે જે કયો તે સ્વામી પણ આપણા હાજરા હાજર છે. તદુપરાંત એમના નીચે સેવા કરનારા રાત દિવસ ભગતજી પણ હાજર છે. આપણને બાપુએ સ્વામી, બે સ્વામી ભગતજી તથા સ્વામિનારાયણ, આપણે બાપુ આનંદ સ્વામી, આનંદ સ્વામીએ કીધું કે આ તમારો જ આશ્રમ છે. એને આપણો છે શેડ આટલો જ, પણ છતાંય ગૌશાળા ખાલી કરી, પથરાવી, કમ્પ્લીટ બાંધી અને બધી રીતથી સગવડતા આપી અને કે જેમ તમારે વાપરવું એમ વાપરો. એટલે ધન્યવાદ છે એમને, આનંદની વાત છે. એટલે પહેલાં તો આપણે સંપૂર્ણાનંદ બાપુનું ભાવ પ્રેમથી, ભાવનાથી સન્માન કરીએ. અમારા દેવાંગભાઈ, ઉત્તમભાઈ અને અમૃતભાઈ, ઘર કુટુંબ પરિવાર, પૂર્વાંગભાઈ, પ્રણવ પ્રયાગ, આવો. પહેલાં સન્માન કરશે મારા દેવાંગભાઈ. બાપુને ફૂલહાર, સંપૂર્ણાનંદ બાપુને ફૂલહાર વિધિ કરી સદગુરુદેવની સાલ વળાવતા. હલો, અમારે અમૃતભાઈ સાલ ઓઢાડી સન્માન કરશે. પછી ઓમ નમઃ શિવાયનું બાપુને બહુ વાલું અને બાપુ બહુ ભજન કરે છે, એમનું કાંઈ સન્માન કરશે અમારે ઉત્તમભાઈ. સારું.
હાલ અમારે પ્રણવભાઈ પણ સન્માન કરશે બાપુનું. ધન્યવાદ. ત્યાર પછી આપણે બાપુ સતપાલજી મહારાજ રાધાકૃષ્ણ ધામ હરિદ્વારથી એમનું સન્માન કરશે. અમારે ઉત્તમભાઈ ફૂલહાર વિધિ શાલ ઓઢાડી. ભાઈ નજીક આવતા રહ્યો. સતપાલજી મહારાજજી રાધાકૃષ્ણ ધામ હરિદ્વાર વિચિત્ર. બાપુ આવો. વાહ, ખૂબ આનંદની વાત. હવે વિચિત્રાનંદ જે બાપુ પ્રયાગરાજજી એમનું સન્માન અમારા અમૃતભાઈ ફૂલહાર શાલ વિધિ. આવો ભાઈ. પ્રણવભાઈ આવો. રાજદીપભાઈ ક્યાં ગયા? શાલ ઉઠાવો. હવે જેના સાનિધ્યમાં આપણે બેઠા છીએ એવા આનંદ સ્વામી સ્વામિનારાયણ મંદિર. આવો બાપુ આવો. નહીં 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 આવો આવો બાપુ આવો આવો. હા મનોજભાઈ, અમારે મનોજભાઈ રામાણી સાલ લઈ લ્યો. અમારે ભગત બાપુ આવો. ભગત બાપુ આવો. એમનું સન્માન અમારા મનોજભાઈ રામાણી જ કરશે. હાલો ને ભાઈ, આવો આવો મનોજભાઈ. કારણ કે એમને સારું દેશી મળે. આવો. અને સાલ આવો આપ ઓઢાડો. હવે ઘોઘાવદરથી બે બાપુ આવો. ઘોઘાવદર બાપુ, બે બાપુ આવો. હા હા. અને બાપુનું ભૂલાઈ ગયો બાપુ. સોરી હો ભાઈ. હા, સ્વરૂપાનંદ બાપુ આપણે સિંહોરથી અને મહામંડલેશ્વર 1008 છે. એમનું સન્માન અમારા ગોપાલભાઈ કરશે. આવો આ બાજુ આવો બાપુ. ના 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 બાપુ આવો, બાપુ આવો. અને વૃદ્ધ અવસ્થા છે, મહામંડલેશ્વર છે 1008, ગૌતેશ્વર મહાદેવ સિંહોર. આવો બાપુ આવો. વાહ ભાઈ વાહ. નહીં નહીં અમારે ગોપાલભાઈ કરશે. ગોપાલભાઈ હણોલથી આવેલા ગોપાલભાઈ. બોલો સદગુરુદેવની જય. નહીં 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 બાપુ. હાલો, સાલ ઓઢાડીને સન્માન કરશે. હા ભાઈ. ના 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 બાપુ. અરે હા હા. હવે ઉત્તરોત્તર લઈએ તો ભીમ સાહેબની જગ્યા, જે જીવણ બાપાના ગુરુ ભીમ સાહેબ સૌરાષ્ટ્રમાંથી આવેલા, એમના વંશજ અમારે જયરામદાસ બાપુ, એમના દીકરા પૂર્ણદાસ બાપુ ને એના દીકરા મનહરદાસ બાપુ આવે છે. નાના એવા માણસ પણ ભાવથી અઢળક છે. એટલે એમનું પણ સન્માન ઓઢાડી અમારે જયેન્દ્રભાઈ સાલ ઓઢાડીને સન્માન કરશે. જયેન્દ્રભાઈ સાલ ઓઢાડીને સન્માન કરશે. બાપુ બેસો એક મિનિટ. હવે અમારે સામરદાસ બાપુ આપણે રેડિયોમાં ભજન સુનતે ને, જીવન બાપા का वो नाम बोलो सुना जाता है ગુજરાતી में જીવન દાસી જીવન, જેને આપણે દરેકને રેડિયો ઘરમાં દરરોજ જીવણ બાપાનું નામ આપણે તો જો કે સૌરાષ્ટ્રના છે એટલે ખ્યાલ છે.
એમના મહંત શ્રી શામળદાસ બાપુ એમનું સન્માન શાલ અને ફૂલહાર ઓઢાડીને જયેન્દ્રભાઈ કરશે અને બાપુનું પણ શાલ આપણે જીતું આવ્યું જીતું ફૂલહાર બાકી રહી ગયો બાપુને સારું ઘરના છે ભૂલા તો રહ્યા તો નથી એટલે વાંધો નથી હા ફૂલહાર અને શાલ ઓઢાડી અને અમારે જીતુભાઈ કરશે જીતુભાઈ ભાઈ દેવભાઈ હાલો સદગુરુદેવ આવું છે મોટું ના ભાઈ ના હવે ધર્મક્ષેત્ર ભક્તિ ક્ષેત્ર બાપુને જે અનુકૂળતા લાગે એ આપણને રસ જ્ઞાન રસનો ભોગ અડધી કલાક જેટલી અને અનુકૂળતા લાગે 5 મિનિટ 10 મિનિટ સદગુરુદેવનું નામ લઈ અને જે રસ પીર છે સાંભળીએ સદગુરુદેવની शिवतनयो वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममाल्यां व्यालयज्ञोपवीतिं मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। नमः पार्वती पतये महादेव हर। इस पवित्र प्रांगण में जहां कल कल निनानी मां भागीरथी के तीरे संत महापुरुषों के चरणारविंद हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य गोवर्धन बापा, जयंती बापा, रश्मिन बापा, जिनके प्रांगण में हम लोग ये सब आनंद ले रहे हैं, स्वामी नारायण महंत आनंद जी, राधा कृष्ण धाम के संरक्षक पीठाधीश्वर मेरे ज्येष्ठ भ्राता पूज्य सतपाल ब्रह्मचारी जी महाराज, अग्नि अखाड़ा के थानापति प्रयागराज के गादीपति पूज्य श्री विचित्रानंद बापू जी, हमारे ज्येष्ठ पूज्य महामंडलेश्वर चरणारविंद, स्वरूपानंद स्वामी जी महाराज, शिव पूज्य महाराज जी की और हमारी विशेष लागणी है, इसलिए वो बड़े थे, मैंने उनका नाम नहीं लिया। गोवर्धन पापा जी का आदेश हुआ तो हम चल के नहीं अपितु दौड़ के भी नहीं और उड़ के इनके पास आ पहुंचे। आपका एक वाक्य हमारे लिए सदैव आदेश है, अभी भी और आगे भी, भविष्य में भी, जब तक हमारे प्राण हैं तब तक रहेगा। ये फाल्गुन मास जहां रंगों का उत्सव है, जहां बुराइयों का दमन है, कहते भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभतो पुरुषो यदावे। करोड़ों पुण्य जिसके उदय होते हैं उन्हें सत्संग का लाभ प्राप्त हो जाता है, परंतु उसका भी पुण्य, उन पुण्यों का भी पुण्य कोई अर्जित होता है तो गंगा के तीरे बैठ के महापुरुषों द्वारा सत्संग प्राप्त होता है। तो हम और आप सबका अति सौभाग्य कि ये 3 लोग जब मंच पे बैठे हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात बैठे हैं। तो बिन भजन के, बिन सुमिरन के, हिंदी ओखड़ो छो ना तमे, सांभळो छो? बस मुझे यही शब्द आते हैं, इससे आगे मुझे आता भी नहीं है गुजराती। कहता बिन भजन के, बिन सुमिरन के, बिन सत्संग के कितना ही वैभव आपके पास इकट्ठा हो जाए, परंतु उसका आनंद आपको प्राप्त नहीं हो सकता।
कहता निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख ब्रह्मा को भारी, पर तुलसीदास विचार कर कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कहता जब सुमिरन नहीं, भक्ति नहीं, जप नहीं, ध्यान नहीं, समाधिस्थ नहीं, तो कहता वो आनंद आपको प्राप्त नहीं हो सकता। सुख तो आपको मिल सकता है, वो भौतिकवाद तो आपको प्राप्त हो सकता है, वो मिशनरियां तो आपके पास आ सकती हैं, पर कहता आनंद केवल भजन में है। और आनंद ही नहीं, अगर आपके पास भजन आ गया तो आपको परमानंद आपके पास आएगा। कहता प्रबल प्रेम के पाले पड़कर उसको नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्तों का मान न टलते देखा। कहता वो कब आता है? समय है ना बापा, ऐसा तो नहीं है कि भोजन के और आपके बीच में हम आकर बैठ गए हैं, क्योंकि पापा ने बोला था 12 बजे समाप्त हो जाता है। तो वो राम जब व्याकुल हुए, राम जब रावण सीता का हरण कर ले गया, राम लखन जंगल में भटक रहे हैं, राम पूछ रहे हैं हे खग हे मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग नैनी, तो ना पत्ते वनस्पति जीव जंतु मनुष्य उन्हें कोई भी मार्ग और पता नहीं बताते मां का। तो लक्ष्मण के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। भगवान राम की पूजा इसलिए है क्योंकि वो सहज और सरल रहते हैं। राम वो हैं जो सबरी के झूठे बेर खाने के लिए तत्पर हैं भगवान होते हुए भी, लेकिन लक्ष्मण ने वो बेर फेंकते रहे, इसलिए सब राम राम रटते हैं, लक्ष्मण लक्ष्मण नहीं रटता, क्योंकि वो दूसरों को स्नेह और प्रेम का आदर नहीं है उसके पास। कहता जब दूसरों के प्रति प्रेम और स्नेह आपका नहीं है तो आपकी वंदना और आराधना ना इस जगत में है ना अगले जगत में है। तो लक्ष्मण ने पूछा कि हम ऐसे भटकते रहेंगे, हम ऐसे खोजते रहेंगे मां को, ये संकट हमें हमेशा ऐसे ही सताते रहेंगे? तो भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं। कहता जो बात दवा में बन ना सके वो बात दवा से होती है, और कोई पक्का सतगुरु मिल जाए तो बात ईश्वर से होती है। कहता कोई वो मध्यस्थता करने वाला उत्तम कोटि का जिस दिन हमें मिल जाएगा उस दिन वो ईश्वर हमारी सुनने लग जाएगा। कहता कब मिलेगा, कौन है वो? कहता ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिवम चारु चंद्रावतत्सम रत्ना कल्पो ज्वलंगम प्रसुमेरवरा बीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात ममर गणेर व्याघ्र कृत्रिम वसानम विश्वान्ध्यम विश्वबंध्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। कहता वो शिव जी जिस दिन और हमारी ओर देख लेगा, कहता बखान क्या करूं तेरे राखों के ढेर का, जबकि भभूति में है खजाना कुबेर का। कहता वो दृष्टि डालेगा जिस दिन, उस दिन हमारे सब दुखों का समापन हो जाएगा, उस दिन हमारे सब संकट मिट जाएंगे, उस दिन सब कष्ट हमारा दूर हो जाएगा। तो है क्यों नहीं आता वो, क्यों नहीं बुलाते हम उसको? कहता उसके लिए कोई उत्तम व्यक्ति चाहिए जिससे वो ईश्वर जुड़ा हो, कोई ऐसी आत्मा चाहिए। ये सत्संग का एक सीधा सा प्रभाव ये भी है कि जिस प्रकार से पानी का टंकी में, अगर पानी की टंकी में पानी साफ हो तो तय है कि नल में भी पानी साफ आएगा। अगर पानी की टंकी में पानी गंदा है तो उस नल से कभी साफ नहीं हो सकती। आपका मन कब साफ होगा? जब आप संत महापुरुषों के ऐसे मंडलेश्वरों के चरणों में आकर आप अपना मस्तक रखें। तो कहता उत्तम ब्राह्मण चाहिए। रावण जैसा विद्वान ना था, ना है, ना होगा, भूतो ना भविष्यति। तो रावण को आहूत किया गया। रावण ने कहा कि मैं ब्राह्मण कुल का हूं, मेरा काम है पूजा वंदना आराधना कराना, मैं आऊंगा, परंतु मेरी पूजा के कुछ नियम हैं, मेरे अपने भी कुछ सिद्धांत है कि मैं 16 प्रकार की सामग्री से पूजन कराता हूं। आज भी हमारे देश में विधान है या तो 16उपचार है या पंचोपचार है। तो राम जंगल के राजा थे, अयोध्या के नहीं थे। तो राम ने प्रार्थना की समुद्र से कि समुद्र राज हमें 16 प्रकार की सामग्री दो। समुद्र राज ने सुनकर भी अनसुना कर दिया।
भगवान ने कहा कि मेरे हाथ में समर्थ है, मैं बहुत दिन तक मांग चुका आपसे। जब धनुष बाण उठाया तो समुद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायणम केशव गोविंद गुरुड़ा दुजा गुणनिधे दामोदर माधवा, हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंडाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। आप पिछले जन्म में लक्ष्मी के पति थे, इस जन्म में राम बने हैं, अगले जन्म में कृष्ण बनेंगे। कहता, बच के रहना जी, कर्म गति है न्यारी, बस नहीं चलता जी, यहां हार गए अवतारी। रामचंद्र को तिलक होना था, राम बने बनवासी, हरिश्चंद्र जैसे सच्चे दानी बन गए मरगटवासी। जेल में जन्मे जी, देखो कृष्ण मुरारी। अगर उसने बाली को धोखे से मारा था तो उसने जेल में जन्म लेना पड़ा। तो ये संत महापुरुष एक ही विद्या आपको देते हैं कि आप अपने सत्कर्मों को, आप अपने कर्मों को ठीक रखिए। आप इस जन्म में भी पूजनीय हो जाएंगे और आप अगले जन्म में भी वंदनीय हो जाएंगे। क्योंकि संत जब तक आपको नहीं मिलेंगे, वसंत आपके जीवन में कभी नहीं आ सकती। महात्मा जब तक आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगा, परमात्मा को लाने की संभावना ही नहीं पैदा होगी। तो आया, हाथ जोड़कर समुद्र खड़ा हो गया, 16 प्रकार की सामग्री दे दिया। जब 16 प्रकार की सामग्री दिया तो जब पूजन करने लगे रावण के साथ भगवान राम, तो रावण ने मंत्र बोले, अंत में कहा कि मनसा वाचा कर्मणा। हे राम, जो उसको मन से नहीं बसता, वचन से नहीं बसता और कर्म से नहीं बसता, जिसका मन अलग है, कर्म अलग है और वचन अलग है, तो वो ईश्वर कभी प्राप्त नहीं हो सकता। आप और मैं ऐसे युग में जी रहे हैं, कहते हैं कि मोबाइल ले लो लेकिन पासवर्ड नहीं देंगे, जान ले लो पासवर्ड नहीं देंगे। तो जब तक वो ईश्वर का भी पासवर्ड ठीक नहीं लगेगा, जब मन वचन कर्म एक जैसा नहीं होगा, जिसकी तारतम्यता नहीं बनेगी, तो वो ईश्वर आपकी कभी नहीं सुनने वाला है। कहता, जिस दिन मन वचन कर्म एक हो जाएगा, वो ईश्वर आपके समीप आकर खड़ा हो जाएगा। तो भगवान ने स्तुति गान किया, नमामि समीसान निर्वाण रूपम विवम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम बजे हम निराकार मोकार मूलम तुरयम गिरा ज्ञान गोती तमीसम गिरीसम। अंत में कहा, न जानामि योगम जपम नेव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम जरा जन्म दोखों गतात्यापमानम प्रभो पाहि आपन नमामि शंभु। कहता, कौन भज सकता है आपकी इच्छा के बिना आपको? जब एक तिनका भी आपकी इच्छा बिना नहीं हिलता, तो मेरी ये आत्मा आपकी, मेरी ये देह आपकी इच्छा के बिना किस प्रकार से हिल सकती है? और जब मैं आप ही के कहने से आपको भज रहा हूं, तो हे नाथ, आपका दायित्व है कि आप प्रसन्न मुझसे हों। इतनी देर एक शिवलिंग का वो ईश्वर कभी प्रकट नहीं होता है, वो महसूस होता है। वो संत महापुरुष आपको अनुभूति कराएंगे उसकी। तो जब शिवलिंग से पुष्प गिरा तो भगवान ने अपने आंचल के बांध लिया। राम ने जब आंचल के बांधा, रावण के चरण स्पर्श किए और रावण जी ने कह दिया विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया। रावण जब लंका गए तो मंदोदरी प्रतीक्षा कर रही थी। बोली रावण से, हे लंकेश, कहां थे तुम? मैंने ढूंढा आपको लंका में, शिवालय में, आप कहीं नहीं थे। बोला, आज मैं किसी का पूजन कराने गया था। कौन था आपका यजमान? मेरा यजमान राम था। तो मंदोदरी ने पूछा, वो राम जिसके नाम के पत्थर तैरते हो, वो राम जिसकी वानरों की सेना के साथ आपके तट पर आकर बैठ गया हो, वही राम? तो रावण को यह बात अच्छी नहीं लगी कि उसके नाम के पत्थर तैरते हो। तो उसने हाथ पकड़ा मंदोदरी का और समुद्र तट पे ले गए। समुद्र तट पर बोला अर्धांगनी को कि इस पे लिख दो रावण। वो रावण लिख देती है और कहता है ये छोड़ दो पत्थर। वो पत्थर छोड़ती है और वो पत्थर तैरने लग जाता है। लेकिन ये भारतीय नारी को परंपरा है, भारतीय नारी को एक सिक्स सेंस है कि उन सबको पता होता है कि पति कितने पानी में है। तो उसने कहा कि मैं जानती हूं ये शिव का अनन्य भक्त है, शिव इसे पुत्रवत स्नेह करता है, परंतु मैं ये भी जानती हूं कि इसके नाम के पत्थर नहीं तैर सकते हैं, क्योंकि नाम के पत्थर तैरने की समर्थता केवल भक्त में है।
ज्ञान केवल जानना चाहता है और भक्त केवल मानना चाहता है। जो भक्त है वो ज्ञानी नहीं और जो ज्ञानी है वो भक्त नहीं, क्योंकि भक्त तो स्वीकार करने वाला है, ज्ञानी जिज्ञासु है, वो जानने की इच्छा रखता रहता है और उसको तर्क वितर्क है। तो कहने लगा ये तो ज्ञानी है, भक्त है ही नहीं, तो इसके नाम का पत्थर नहीं तैर सकता। तो जब उसने मना लिया और पूछ लिया कि आपको मेरी सौगंध, ये बताओ कि ये पत्थर कैसे तैरा, तो कहता है कि हे मंदोदरी, जैसे तुमने मुझे अपनी कसम दी है वैसे ही मैंने इस पत्थर को कसम दी है कि जिसकी मैं पूजा करा के आया हूं वो सच में विष्णु का अवतारी है, तो ये पत्थर तैर जाए। तो उसने कहा कि आप आए हैं, मैं अर्धांगिनी हूं। श्रीमती इसलिए कहा जाता है कि वो आपको हमेशा अच्छी मति दे, इसलिए उसका नाम श्रीमती है। धर्मपत्नी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सदैव आपसे धर्म कराए, इसलिए वो धर्मपत्नी है। तो उसने कहा मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप जाओ और शिव को कैलाश से लंका में ले आओ, क्योंकि जब वो शिव कैलाश से लंका में आ जाएंगे रावण क्रोधमयी दृष्टि से देख भी नहीं पाएगा। तो रावण को अभिमान था, व्यक्ति को स्वाभिमान होना चाहिए। तो उसने कहा कि आप शिव को कह रही हो मैं पूरा कैलाश लंका उठा लाऊं, चलत दशानन डोलत अवनी। और उस शिव को एक बार उस रावण ने उठा भी दिया। जब उस रावण ने शिव को उठा दिया तो शिव भगवान ने आंखें खोली और देखा कि किसको ऐसा आशीर्वाद दे दिया है कि जो तुम्हें उठाने चला है। तो भगवान ने बाएं पैर का अंगूठा रखा कैलाश पे और रावण बर्फ की सीलियों के नीचे दब गया। रावण मंत्र बोलने लगा, भगवान ने सुन के अनसुना कर दिया। कोई दूध नहीं था, कोई घी नहीं था, कोई शक्कर नहीं थी, कोई शहद नहीं था, कोई गंगा जल नहीं था, कोई यज्ञोपवीत नहीं था, कोई धूप नहीं थी, कोई दीप नहीं था, कोई नैवेद्य नहीं था, कोई दक्षिणा नहीं, कोई प्रदक्षिणा नहीं। जब उसे लगा मेरी सांस दब जाएगी तो उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर दी। आइए हम गंगा के तीरे बैठे हुए हैं, ऐसे दिव्य महापुरुषों के सानिध्य में हम लोग हैं। हमारे भाग्य की अति बड़ाई है आज के दिन, कहीं ये सब गंगा का तीरे और संत महापुरुषों के सत्संग आपको प्राप्त नहीं हो सकते, बाकी आपको सब कुछ इस संसार में सब कुछ आसानी से सुलभ है। तो उसने जब देखा तो उसने शिव तांडव स्तोत्र रचना, जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद व डमरवयम चकार चंड तांडवम तनो तुना शिव शिवम जटाकटा हसंभ्रम ब्रह्मण्यलिम पनेरजरी विलोल विच्चवल्लरी विराजमान मूर्धनि दगत 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 ज्वल ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। मैंने एक श्लोक आपको सुनाया, उसने कहा कि मैं ना आपको भजूंगा ना भजने दूंगा, मैं नहीं भज रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं भजने भी किसी को नहीं दूंगा। हे शिव, मुझे एक प्रश्न का उत्तर देके चले जाओ कि मैंने सुना है जो शिव की उपासना करता है वो श्रेष्ठ हो जाता है, जो शिव की उपासना करता है वो ज्येष्ठ हो जाता है, जो शिव की उपासना करता है वो शिखरस्थ रहता है, जो शिव की उपासना करता है वो वंदनीय हो जाता है, जो शिव की उपासना करता है वो आराधनीय हो जाता है, जो शिव की उपासना करता है वो उत्तम रहता है, जो शिव की उपासना करता है वो श्रेष्ठ इस संसार में बन जाता है, और जो शिव की उपासना करता है वो तो हाथी घोड़ों से संपन्न रहता है। और आप सुनकर भी अनसुना नहीं कर रहे। तो भगवान प्रकट हो गए, उसने कहा पूजा वसान समय 10 वक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठती प्रदोषे तस्य सिताम्रत गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखीम प्रददाति शंभु। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने शिवलिंग दे दिया, लेकिन इस संसार में जो उत्तम है, जो मंगलकारी है, जो शुभकारी है, उसके लिए देवताओं ने भी कभी कभी छल किया है कि इस संसार में हमेशा अच्छी वस्तुएं आपके हाथ रखें। इसलिए उस शिव को नीलकंठ कहा गया है, क्योंकि ना वो विष अंदर लेके गए और ना वो विष बाहर लेके गए। तो पूछा किसी ने कि आपने कंठ में ही धारण क्यों किया नाथ? तो कहने लगे जो कड़वी बातें हैं वो बाहर नहीं बोलनी चाहिए, और जो कड़वी बातें हैं वो मन के अंदर भी नहीं रहना चाहिए। और यही सत्संग का प्रभाव है कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मैं तो केवल सुनने आया था गोवर्धन बापा का,
और मुझे बोलना पड़ रहा है, लेकिन मैं छोटा सा ब्रह्मचारी हूँ, बहुत बालक जैसा सबका हूँ। हमारे तो गीत एक हैं, वचन एक है, वाक्य एक हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, महा कश्चित् दुख भाग भेद। मैं छोटा ब्रह्मचारी होने के नाते आप सब भक्तों को कोटि कोटि वंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ખૂબ સંપૂર્ણાનંદ બાપુ ધન્યવાદ. આનંદની વાત છે, આનંદ કરાયો. આપણને ખૂબ આનંદ અને પ્રસાદ લઈ અને બધાને જવાનું છે અને સ્વયંસેવકો જે કહે એ પ્રમાણે પ્રસાદ લેવામાં ધીમે ધીમે ઉઠવાનું. અને રાત્રે રાબેતા મુજબ આપણે 9 થી 12 સુધી કાર્યક્રમ આપણે છે, એટલે જ્યાં બપોર પછી જ હરિહર પ્રસાદ લઈ અને કોઈને ફરવા, જમવા, નાહવા જે કાર્ય કરવું હોય ખુશીથી કરો ને આનંદ માર્યો ને આનંદ કરો. અને બાપુએ બહુ સારામાં સારી વાત કરી, એટલે આનંદની વાત છે. બાપુ એવડા મોટા તોય નાના થાય છે, એવડા મોટા તોય નાના થાય છે, એટલે ધન્યવાદ છે બાપુ. એટલે આનંદની વાત છે ને આ નાનું થવું એ બહુ કઠણ છે. બાકી વાહ વાહ તો બધા જગતમાં કરે જ છે, એટલે ધન્યવાદ છે બાપુને. બોલો સદગુરુદેવની જય. ઓમ નમઃ પતે. હર હર મહાદેવ હર. ઉગમેશ્વર સાહેબ, લાભેશ્વર નાથની જય. ભલારામ બાપા, દેવારામ બાપાની, સનાતન ધર્મની જય.